ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਹੁ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਹੁ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਰਮਾਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਤਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਚਾਓ ਖਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤਰੀਕ,
वार केड़ा सी, कवन से रुत्ती रुत केड़ी सी, माह कवन महीना केड़ा सी, जित होआ आकार। जदों ये जिस वक्त ये संसार बनिया कोई दस सकता है? लेकिन तुसी पुरातन धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ पै जाएगी कि धार्मिक लोगों के ग्रंथों विच भी इस गल उत्ते बड़ी चर्चा की गई है भी रब ने कदों की बनाया, बड़ियां गिणतियां मिणतियां दित्तियां ने, और एक दी गिणती मिणती दूजे नाल रलदी नहीं। और एक बड़ी स्वादली गल है, सारे कहते ने भी ये अवतार सीगे, ये ब्रह्म ज्ञानी सीगे, ते मैनूं कदे कदे हासा आउंदा है। जे ब्रह्म ज्ञानी है कोई, मतलब दो ब्रह्म ज्ञानी ने, ते दोवां नूं इक्को चीज दिसनी चाहिए, परमात्मा दो तो नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब गल है कि एक ब्रह्म ज्ञानी नूं कुछ होर दिसदा है, दूजे नूं कोई होर दिसदा है, एक कोई होर गल कहंदा, दूजा कोई होर गल कहंदा है। असल विच कहानी की है? कहानी ये है कि ये ब्रह्म ज्ञानी का लेबल भी असीं लाउने आ, जिन्हां नूं पता कख नहीं। कोई सियाणा बंदा जिहड़ा आत्म दृष्टि रखदा है वो कदे नहीं कहता मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, क्योंकि ये तो बीमारी है कि मैं ये आखना भी मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो बीमारी है, तो वो इस बीमारी नूं कदे नहीं छेड़दा। पर असीं जिहड़े लोग पैरोकार हुन्ने आ मत्थे टेकण वाले, सानूं चूंकि पता कख नहीं हुआ, असीं उहनूं लेबल ला दिंदे कि ब्रह्म ज्ञानी है। बड़ी अजीब गल है कि जिन्हां नूं पता कख नहीं वो पास कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी है, तो जिन्हों पता है वो कहता मैं तो मिट्टी हाँ, खाक, मैं तो कुछ भी नहीं हाँ। इस करके जदों उन्हां दे नां ते कोई लिखतां किरतां संसार विच प्रगट हुंदियां ने, तो उसका नतीजा यह होता है कि वह लिखत एक नाल दूजे की नहीं मिलती, क्योंकि वह सेवकों ने बनाइया होंदियां ने, उन्होंने आप नहीं बनाइया होंदियां। वो कलैक्शन जिहड़ी है वो तो थर्ड क्लास लोगों की होंदी है, थर्ड तो भी थले दे लोगों की होंदी है। इस करके बहुत मुश्किल बनती है, तो वो गल्लां आपस में रलदियां नहीं। 18 पुराण ने, उप पुराण ने, इस तरह होर धार्मिक ग्रंथ ने, एक दी गल दूजे नाल बिल्कुल नहीं मिलती, मिल सकती नहीं। उसका बड़ा बुनियादी कारण है क्योंकि लिखे तो उन्होंने लोगों ने जिन्होंने पता कुछ नहीं, व्याख्या भी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पता कुछ नहीं। इस करके बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भी किसी को कोई पता नहीं, कहते ने कोई। इस करके सतगुरु कहते ने गुण गावत तेरी उतर समैल, तू हिसाब किताब ना ला, तू गुण गा। जे तू हिसाब किताब लाएगा फिर तू फंस जाएगा। कहते ने गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हौमे बिख फैल। पर बंदा जो गुण करके हिसाब लाउंदा फिर हौमे बनती है, फिर हौमे जावे किथे। इस करके सतगुरु कहते हैं भी ये गल किसी को पता नहीं लगा। इस ते सतगुरु कहते हैं वेल ना पाइया पंडिती, कहते पंडितां ने भी वो वेला, वो वक्त, वो घड़ी, वो समा उन्होंने नहीं लभा। जे होवे लेख पुराण, कहते ने जे लभ जांदा ते कोई पुराण वर्गा लेख लिख दिंदे, कोई ऐसा पुराण भी लिखिया जाता। वैसे पुराणों के अंदर यत्न किए गए हैं, पर कोई निश्चित गल नहीं है। वो तो देवी देवतियां की होड़ है। जे किसी ने ब्रह्मा से पुराण लिखिया तो कहता सब कुछ ब्रह्मा ही है, जे किसी ने शिव ते पुराण लिखिया तो कहता ब्रह्मा की लगता है शिव ही सब कुछ है, जे किसी ने विष्णु ते लिखिया तो विष्णु को केंद्रित किया है, कहता सब कुछ वही है। क्योंकि हर एक ने अपने ही गुरु पीर पैगंबर नूं वडियाउण की कोशिश की है। और इस भुलेखे विच सिख जगत विच भी कुछ लिखतां इहो जिहियां आ गईयां जिथे उन्होंने आख्या साडे गुरु किहड़े देवी देवतियां नालों घट ने। एक समा रहा है कि जदों इस गल दा भी विचारवानां दे अंदर रौला रहा कि साडे गुरु उन्हां अवतारां पैगंबरां नालों किस तरह किसी गल्लों घट नहीं, ओहो जिहियां करामातां, ओहो जिहा उड़ पटांग सब गुरुआं नाल भी जोड़ दिता लोकां ने। उन्हां वेखिया नहीं कि गुरु कहिंदे की ने, गुरुआं दे अपने बचन की हैं, इस पासे ध्यान नहीं दिता। लेकिन जदों गुरबाणी पढ़ते हैं तो समझ पैंदी है कि गुरु जिहड़े ने वो अवतार पैगंबरां वाली कहानी विच नहीं आउंदे। उन्होंने किते हिसाब किताब गिणती मिणती ते अपने आप नूं सारी सृष्टि का करता करन दी कदे कोशिश नहीं की। वो तो कहते हैं असीं तां इन्ने असमर्थ हां कि वारिया ना जावां एक बार। ते सिख नूं भी कहते हैं, कहते खिमा करी तू भी इन्ना ही असमर्थ है, मत समझी भी तू बहुत बाणी पढ़ के बहुत मथे टेक के बहुत समर्थ हो गया, नहीं, तू भी उत्थे खलोता है। इस करके सतगुरु कहते हैं कि वेल ना पाइया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। फिर कहते हैं वक्त ना पायो कादियां, कादी ते काजी। असल च अरबी विच जिहड़ा दुआद है ना, जिहड़ा पर्शियन विच भी है, जिन्होंने जुआद भी असीं कहने, वो दो प्रोनाउंसिएशन ने, उन्होंने जुआद भी पढ़िया जाता है तो उन्होंने दुआद भी पढ़िया जाता है।
इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तुसीं देखोगे कि कई थावां ते काजी लफ्ज आया ते कई थावां ते कादी लफ्ज आया। ये असल में उस लफ्ज के ओरिजिनल प्रोनाउंसीएशन का प्रभाव है। तो जिन्होंने लोगों ने कहानी बनानी सी, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियां है कस्बा, उत्थे चूंकि वो कादियानी मत जिहड़ा उहदा प्रचार होया ते उन्होंने आख्या भी देखो गुरु नानक साहब तो भविखबाणी कर गए भई जो किते मुसीबत का समा आवे, जो पार्टीशन हुई ना, तो उन्हें कहा गुरु नानक तो पहलों कह गए भी सानू तुसीं वक्त ना पाओ, भी सानू कुछ ना कहो। कई वास्ते यह कहानी नवी होएगी, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रचार होंदा रहा तो अज भी होंदा है। इस करके मैनूं जिक्र करना पै गया, शायद किसी के दिमाग में गल होवे, कोई सुनी लवे। कहंदे ने वक्त ना पाओ कादियां, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब की लिखत अते व्याकरण के मुताबिक पहली गल तो भी गुरु ग्रंथ साहब च वक्त लफ्ज बड़ी बार आया, लेकिन इस वक्त का अर्थ वक्त ही है, मुसीबत नहीं। किते भी यदा अर्थ मुसीबत नहीं आया। दूसरा जिहड़ा पायो लफ्ज है पास्ट टेंस है, नहीं लभा। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो, पास्ट टेंस है, सारा भूतकाल है। जे हुंदा ना भी ना पायो, फिर हुंदा पायो, पप्पा कन्ना ईड़ी सियारी एड़ा ते हाय नौकड़। जदों हुक्मी भविखत आउंदा है, ये व्याकरण के मसले हैं, लेकिन थोड़ा जिहा संकेत तुहानूं करना चाहुंदा। जदों हुक्मी भविखत आउंदा भी आउण वाले समय लई कोई गल होवे ते उदों इहदा जोड़ जिहड़ा वा वो इस ढंग नाल आउंदा है। जिवें हुंदा ना अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो, उत्थे कक्का रारे नूं सियारी एड़ा हाय नौकड़ है। फिर मैं करना असीं बाणी बिल्कुल नहीं जानते, असीं बहुत गलत पढ़ते हैं, बहुत गलत समझते हैं, और ये वास्ते बहुत यतन करना चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए है, नहीं तो बड़ा खराब होवांगे असीं। पर असीं हुण तक जिहड़े खराब हो रहे हैं, इहदा भी कारण इहो ही है, क्योंकि असीं बुनियादी सिद्धांत नूं बिल्कुल छड्ड के होर गल्लां बना रहे हैं। तो यही समझदे भी एक किताब ही है, चल ठीक है। क्षमा करना, यह बड़ी दुखदाई गल है। पर ना जानन करके उन्होंने लोगों ने प्रचार किया, और बहुत लोग जिहड़े सी मन गए इस गल नूं। पर सतगुरु ये गल नहीं कह रहे, वो कहते ने वक्त ना पायो कादियां, काजियां ने भी। क्योंकि एक ख्याल रखना, गुरु नानक साहब वेले तो कादियानी मत है ही नहीं सी। वो जिहड़े कादियानी ने गुरु नानक साहब वेले तो उन्होंने होंद ही कोई नहीं सीगी। इस करके गुरु नानक किस तरह उन्होंने बारे कोई गल कह सकते सीगे। ते ये कादी लफ्ज काजी के अर्थ में गुरु ग्रंथ साहब बेअंत वारी आया। इस करके सतगुरु कहते ने वक्त ना पायो कादियां, वो काजियां ने भी उधरों पंडितां की गल की, उधरों काजियां की गल की है। मतलब है कि दोवें ही धार्मिक श्रेणियां के मुखी मनुखा ने वाहिगुरु अकाल पुरख की इस रचना के आरंभ का टाइम नहीं लभा, नहीं पता। वक्त ना पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान, नहीं तो भी कुरान वर्गा कोई लेख लिख देंदे, कोई पुस्तक लिखी जाती, पर ऐसा नहीं होया। हुण तीसरा कहते ने थित वार ना जोगी जाने, क्योंकि जिस वे सतगुरु सच्चे पातशाह समाज में विचरे हैं तो ये तीन श्रेणियां का बड़ा बोलबाला सी, ब्राह्मणी मत का, ते इस्लाम का, ते योग मत का। इस करके सतगुरु कहते ने थित वार ना जोगी जाने। किहड़ी थित सी, किहड़ा वार सी, किसी योगी नूं कोई नहीं पता। रुत माह ना कोई, किहड़ी रुत सी, किहड़ा महीना सी, कोई निश्चित नहीं कर सकता। कहते ने जा करता सिर ठीक साजे, आपे जाने सोई। कहते इस झगड़े च पैण की जरूरत नहीं। ये तो वो जिहड़ा करता है ना, वो जिहड़ा करता जो सृष्टि नूं साजदा है, जिहड़ा करता इहनूं बनाउंदा है, आपे जाने सोई। ये वही जानता है, दूसरे किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि उन्हें किसी नाल कोई मशवरा नहीं किया, कोई सलाह नहीं की कि भाई कि बनावा कि ना बनावा, फलानी चीज़ बना दें कि ना फलानी बना दें। एक मैं बड़ी हासे वाली गल पढ़ी है, कहते हैं कि परमात्मा ने पहले दिन अखे आ चीज़ बनाई, दूजे दिन आ बनाई, तीसरे दिन आ बनाई, चौथे दिन आ बनाई, तो अखे 7वें दिन उन्हें सूरज बनाया। माफ करना, जो सूरज नहीं सी तो पहला दिन कित्थों आ गया। यानी कि इस तरह दी ऊट पटांग कहानियां भी तुहानूं धार्मिक ग्रंथां विच मिलणगीਆਂ। और एक कसूर गुरुआं पीरां पैगंबरां दा नहीं, एक कसूर पैरोकारां दा है, जिन्हां ने कलैक्शनस कीतियां ते जिन्हां ने हुण गुरु ग्रंथ साहब दा ते कोई दोष नहीं। जे असीं इहदी व्याख्या गलत करिए, जे असीं इहनूं ठां तां करके पेश करन दी कोशिश करिए, कई लोग तोड़ मरोड़ के अपने पंथ चला रहे हैं, तां गुरु ग्रंथ साहब दा की दोष है? दोष है कि असीं इन्हां चीज़ां नूं चंगी तरह समझण दी कोशिश नहीं करते। इस करके गुरदेव कहते हैं इस फिक्र क्यों लगा है मनुख कि रब नूं वेखां उहदी कुदरत ने कदों बनाई सी, कदों शुरू की सी। कहते नहीं, जा करता सिर ठीक साजे, आपे जाने सोई। साहिब कहते ने किव कर आखां
कि विसाला ही, कहते मैं किस तरह कह सकता हाँ, किद्दां बयान कर सकता हाँ, किवें उहदी सिफत कर सकता हाँ, क्यों वरनी क्यों जाना, मैं किस तरह वर्णन कर सकता, किवें जान सकता हाँ कि वह वाहिगुरु अकाल पुरख कितना वड्डा है, कितना महान है। कहते ने नानक आखण सबको आखै, आखण इत्थे आखण जिहड़ा ये मूँह वास्ते वरतिया, कहते ने मूँह नाल नाणे नूं सियारी पाई है। कहते ने आख नानक आखण सबको आखै, कहते ने मूँह नाल सारे कहते ने, एक दूं एक सियाणा, एक तो एक सियाणा बंदा दुनिया च बड़े ने, रोज नित नवीं गल करते हैं भी आ सृष्टि का है, हिसाब किताब सूरज का है, चंद्रमे का है, रोज इस गल की चर्चा लोग करते हैं। नानक आखण सबको आखै, एक दूं एक सियाणा, पर कहते ने वड्डा साहिब वड्डी नाई, कहते ने वह मालक वड्डा है। नाई तो मतलब है उसकी उस्तत, उसकी वड्याई, उसकी वड्याई भी वड्डी है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जां का होवे, जिसदा कीता होया ये संसार हो रहा है ना, जिहदा कीता किसी बंदे का कीता होया नहीं, जिसदा कीता होया ये संसार में सब कुछ हो रहा है, वो इहदा मालक है, ते ओदी नाई, ओदी उस्तत, ओदी वड्याई भी वड्डी है। कीता वड्डे वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जां का होवे, नानक जे को आपों जाने अगे गया ना सो है। कहते जे कोई अपने आप नूं दसन की कोशिश करेगा कि मैं बहुत वड्डा जी, मैं हिसाब किताब ला लिया, मैनू सारी गल का पता लग गया, कहते ने वाहिगुरु अकाल पुरख के दर उत्ते उहदे निर्णय विच उस बंदे की कोई मान सत्कार की कहानी नहीं बननी, क्योंकि वह जिस वे सामने सन्मुख जाने की कोशिश होएगी तो वह देखेगा भी मेरे को गल बनी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकिया, मैं तो बिल्कुल सिफर हाँ। उन्होंने वाहिगुरु अकाल पुरख के सन्मुख अपने आप को छोटा होने का एहसास महसूस हो जाएगा कि मैं तो जी गल की थी कुछ भी नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब का जिक्र मिलता है, बगदाद में गए, अगे चल के इस संबंध में पौड़ी है जी उत्थे वरती जाती, प्रमाण दिता जाता है, लेकिन गल वही है, पीर इत्थे टिकिया होया भी सत पताल ने सत आकाश ने, सृष्टि की अनंतता बेअंतता संबंधी कोई ज्ञान नहीं है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने उसके पुत्र को आत्म दृष्टि दी, उन्होंने क्या देख तक, ते जिस वेले उन्हें वेख्या एहसास किया, कहने लगा तो कहानी कुछ हो रही, ये तो बेअंत गल है। इसे करके जिस वेले गुरु जपजी साहब का तर्जमा कुछ मुसलमान लोग करन लगे हैं, डॉक्टर इकबाल का जिक्र है, वह कोई दोस्त कर रहा सी, ते इत्थे आण के गल अड़ गई भी असीं ते सत पसाल सत आकाश की गल करते हैं। तो उन्हें पूछया, उन्हें आख्या गल सुनो, गुरु नानक साहब नूं ज्यादा पता है इस्लाम का, गुरु नानक साहब नूं रब्बी कुदरत का ज्यादा बोध है, इस करके गुरु नानक की लिखत में कोई उलट पुलट नहीं किया जा सकता। तुहानूं अपने ख्यालों में कोई कमी नजर आती होएगी तो होगी, लेकिन गुरु नानक की गल नूं कोई बदल नहीं सकता। जिहड़े आत्मिक दृष्टि रखने वाले लोग ने वो हिसाब किताब के चक्कर में तो पैंदे ही नहीं। असीं जिहड़े हाँ जिथे असीं खलोते हाँ, असीं गिणतियां मिणतियां नाल वाहिगुरू अकाल पुरख नूं हिसाब किताब विच रख के अपना काम सवारन की कोशिश करते हैं। असल गल पता की है, असल गल सिर्फ इतनी है कि साडा सुभाव बन गया, असीं कपड़ा मिण के लेने, हर चीज़ की कीमत असीं निश्चित की, रोज़ मार्केटिंग करते हैं, सवेर तो शाम तक खरीदते हैं, हर चीज़ का मुल, हर चीज़ की पैमाइश, ते देंदे भी है सब कुछ, हर चीज़ का मुल, हर चीज़ की पैमाइश। ये सुभाव बन गया साडा। ते जिस वेले धर्म की दुनिया में आने उही मीटर लैके आने, उही पैसे, उही मीटर, उही माप तोल। माया का अर्थ ही है, विद्वाना ने माया का अर्थ किया है जिहड़ी चीज़ मापी जा सके, जिहड़ी चीज़ तोली जा सके, जिहदा मेजरमेंट हो सके, कहते ने वो चीज़ माया है। ते परमात्मा चूंकि इस तो उपर है, इस करके माया नूं परमात्मा की दासी, परमात्मा की सेवादार नहीं मने है, क्योंकि माया मिली जा सकती, हिसाब किताब कर लेने असीं, पूरा नहीं, ये भी पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुता कर लेने, लेकिन सुभाव बन गया। इस करके जो गुरुद्वारे आता ना कोई बंदा, तो कहता की मिलेगा, क्योंकि वो समझता भी इत्थे भी कोई प्रॉफिट की गल है, क्योंकि उन्होंने आत्मिक प्राप्ति का कोई नहीं पता। गुरु नानक कहते हैं परमात्मा की सिफत करो, तुसीं गुणां नाल भरपूर हो जाओगे, तुहानूं परमात्मा की मेहर ते बख्शिश प्राप्त होगी। माफ करना, इस गल की समझ गुरु नानक नूं ते है, सानू कोई नहीं। असीं अकीदा ते विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते। देखो ना, बच्चा स्कूल में जाता है,
ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੇ 2 4 ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 2 ਤੇ 2 4 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਾਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚੱਲ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ, ਕਾਜ਼ੀ, ਯੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਰਦੇ ਆ ਟਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋਂ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੜੀ ਸਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੀਤ ਕੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।